Good evening, class. Good evening, everyone. Welcome back with another session. I hope you all are doing great, beta ji. So ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕੋਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 118 ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ YouTube ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ, ਨੂਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਇਵਨਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ बैच। लाइक मैथ साइंस वाला बच्चा मैथ साइंस की क्लासेस लगा सकता, बाकी जो कॉमन सबजैक्ट है उन्होंने तुम जरूर डेफिनेटली लगा लेना। ठीक है, दैन जेकर तुम टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन बैच बाय करना चाहते हो तो प्राइस 1499 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। इफ़ यू वॉन्ट ओनली अ रिवीजन बैच दैन 999 ਤੁਹਾਨੂੰ रिवीजन बैच मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिन हो चुके हैं। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ कि मैम किधरे जल्दी दे चक्कर में जैसे पिछला काम तो नहीं छड़ पा रही। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आज रजे सारिਆਂ गुड ईवनिंग आराम नाल जल्दी जल्दी अज सैशन थोड़ा लगावांगे तो थोड़ा जा कोऑपरेट कर लेना सिर्फ अज का दिन, बाकी मंडे तो लैक्चर अपने उवें ही सीरीज़ के नाल कंटिन्यू चलणगे। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 1। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू सोशल इंटरैक्शन। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਸਪੋਟਡ ਬਾਈ ਵਾਈਗੋਸਕੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੇ ਹੀ ZPD ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਨੇ ਹੀ MKO ਮੋਰ ਨੋਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨੇ ਹੀ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, जो बच्चों की टैंपरेरी हैल्प है उन्होंने आप स्कैफोल्डिंग नाम दे देने। क्लीयर है जी, पॉइंट क्लीयर से क्लीयर है। सो बी विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। In that stage of language development, infants repeat consonant vowel sounds combination in the long strings. Like repetition ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ consonant sounds vowel sounds ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। babbling, cooing, telegraphic speech, invented speech। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, babbling ਆਏਗਾ, that is a A option। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ 6 to 10th ਮੰਥਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਾ 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 ਬਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾ 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 ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ 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 ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ A ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। क्वेश्चन नंबर 3। In language learning, the semantic achievement in early childhood is considered when। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੈਨ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਔਰ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਦੈਨ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। In a language learning, the semantic achievement in early childhood is considered when child's language production develops ahead of the language comprehension। नहीं, ਐਵੇਂ नहीं आएगा, पहला लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आएगा। चाइल्ड्स लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन डेवलप्स अहेड द लैंग्वेज प्रोडक्शन। सो बी विल बी राइट आंसर। तुसीं सुनिया होएगा रिसैप्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स। सब तो पहला रिसैप्टिव स्किल्स आंदियां ने, ठीक है, जिन्होंने बच्चा पहला रिसीव करता, आफ्टर दैट बच्चा प्रोडक्टिव वे दे नाल उहनूं रिप्रजेंट करेगा। लाइक जिवें आपां मैं तुहानूं सारियां स्किल दस्सियां इन्हां चारों स्किल्स आपस दे विच इंटरकनैक्ट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। LSRW ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ, ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਿੱਲਸ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਔਰ ਰੀਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ। ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, रिसैप्टिव स्किल्स जड़ियाँ होंदियां बेटा ये दैट इज़ अ लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, बट प्रोडक्टिव स्किल्स आर, प्रोडक्टिव स्किल्स केड़ियां होंदियां ने, दैट इज़ अ रीडिंग, प्रोडक्टिव स्पीकिंग एंड राइटिंग, जिंदे विच असी अपने थॉट्स नूं एक्सप्रैस करते हैं, तो रिसीव दे विच जिंदे च आपां अपने थॉट्स नूं गेन करते हैं। आई होप कि इन्नी गल क्लीयर होगी। सो दैट्स वाई अपना जो राइट आंसर बनेगा बेटा बी ऑप्शन बनेगा। ओके, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4। The idea that humans are born with innate system
for picking up language that needs only to be triggered by verbal input from the environment is supported by nativist, behaviorist, cognitivist या फिर constructivist. आंसर करो. ये क्वेश्चन आप रीसेंट क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ, आई थिंक मे बी फ्राइडे नहीं थर्सडे वाली क्लास 'ਚ ਕਰਿਆ ਸੀ. ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ. ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ. शाबाश, बहुत बढ़िया. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾ ਸੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਨੇਟਿਵਿਸਟ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਚਮਸਕੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਮਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਐਨੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, यूनिवर्सल ग्रामर. एने ही भाषा के डीप स्ट्रक्चर की गल की है, ग्रामर के डीप स्ट्रक्चर. एने ही क्या से कि जोड़े फाइनाइट सैट ऑफ रूल्स तो बच्चा की करता है? इनफाइनाइट सेंटेंस बना सकता है इन अर्ली पीरियड ऑफ एज. क्लीयर है? होर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स है. जनरेटिव ग्रामर की गल इन्हें की है, ठीक है, सारे पॉइंट याद रखना. क्वेश्चन नंबर 5, A child calls all four wheelers are car. जिन्ने भी wheelers are car. This early vocabulary error, हम तुहानू पता ते गलती है, ठीक है. All four wheelers as car. Errors in which a word is applied too broadly to a wider collection of object and event is called. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਬ੍ਰੋਡਲੀ. ਬ੍ਰੋਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦੈਨ ਟੂ ਅ ਵਾਈਡਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਜੇ? ओवर एक्सटेंशनस, अंडर एक्सटेंशन, स्पीच डिसऑर्डर, स्टटलिंग. एवं का कुछ नहीं होंगे. स्पीच के थोड़ा ना दिक्कत है, वो तो बच्चा जोड़ा है सेंटेंस को गलत यूज़ कर रहा है या फिर ओवर जनरलाइजेशन कर रहा है. इट मीनस राइट आंसर की आ जाएगा? ए ऑप्शन. गल तुसीं इन्नी दसनी है, वधा के दस रहे हो या ज़्यादा रूल्स नूं अपलाई कर रहे हो या ओवर जनरलाइज कर रहे हो, तुहानूं आपां की लगा देंगे ओवर एक्सटेंशन. एवं का क्वेश्चन आप पहला भी करया होया, ठीक है बेटा. जेकर तुसीं अपनी बुक्स का कॉम्बो सैट स्टिल बाय नहीं करया, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस बेटा देख लेना. साइकोलॉजी, पंजाबी, इंग्लिश या फिर तुसीं इंग्लिश मैथ्स प्लस EVS का भी कॉम्बो सैट लै सकते हो. दोनों ही तुहाडे कोल प्रेफरेंस है. अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस देख लेना. जिहड़ा पेड स्टूडेंट है उनके लिए प्राइस की जिहड़ी है वो अलग है, बट नॉन पेड स्टूडेंट के लिए प्राइस डिफरेंट है. बाकी 10 फैब तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता अपना जो रैपिड रिवीजन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ स्टार्ट हो चुका है. स्टिल जेकर तुसीं बाय नहीं करिया बेटा, तुसीं बाय कर लेना, क्योंकि बहुत ही हैल्पफुल रहने वाले ने चीज़ां. एक अपनी तैयारी में नैक्सट लैवल ले जाने का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि तुसीं मॉक टेस्ट ते टेस्ट सीरीज लगाओ. क्लीयर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 ते मूव करते हैं. बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स लर्निंग to reason about written material using knowledge from everyday life and form disciplined fields of study, so it can be said that skilled reading is. ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਫਲੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ. ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਯੈਸ. ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ. ਹੀਅਰ ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ. ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਕਿਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇਗਾ. Question number 7, a language teacher gives the task as a holidays homework to her learners to read any novel of their interest. आ देखो इत्थे आंसर पिया होया, any novel of their interest. बस इत्थे आंसर पिया होया इस क्वेश्चन दी आ लाइन च. From the given list, एक लिस्ट गिवन है, उनके विचों कोई भी मैं तुहानूं कह दिंदी हाँ, मैं तुहाडे सामने 10 तो 12 टास्क लिख रही हाँ. दसो इन्हां 10-12 टास्क में तुसीं किहड़ा टास्क करना प्रैफर करोगे? इट मीनस मैं तुहाडी प्रैफरेंस पूछ रही हाँ. सो इंटेंसिव रीडिंग नहीं आंदा. इंटेंसिव का मतलब सारे बच्चों लिए कॉमन है, हर एक बच्चा उन्होंने अप्लाई करेगा, उन्होंने पढ़ेगा. एक्सटेंसिव का मतलब होंदा अकॉर्डिंग टू योर प्रैफरेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रैफरेंस. जो तुहाडी डिमांड है, जो तुसी पढ़ना चाहते हो, जो तुहानूं एट प्रेजेंट नीड है जिहड़ी चीज़ की, तुसी अपनी खुशी दे लई पढ़ना चाह रहे हो, अपने प्लेजर दे लई पढ़ना चाह रहे हो, अपनी इंजॉयमेंट दे लई पढ़ना चाह रहे हो. सो सारे किंदे च आ जाणगे? एक्सटेंसिव. हुण कुछ भी फाइंड आउट करन दी गल नहीं होई सी तां स्कैनिंग आएगा नहीं. कोलैबोरेटिव रीडिंग नहीं इत्थे प्रेफर. सो बी विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8,
बेटा अज के जोड़े क्वेश्चन ने 10 ही रहने, अज आप 15 क्वेश्चन नहीं करने क्योंकि अज तुहानूं जो लैक्चर है रिकॉर्डिड फॉर्म के मिलेगा, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आप मंडे तो उस ही सीरीज़ में कंटिन्यू करांगे तो बहुत वधिया तैयारी करांगे। मैनूं ये है कि तुहाडा एक दिन भी स्किप ना होए, सो इस ही रीजन ध्यान च रखते हुए आप ये लैक्चर करिया, ठीक है। अज लाइव नहीं लग पा रहा सी ड्यू टू सम रीजन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मल्टीलिंगुइज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स। हुण मल्टीलिंगुइज्म का मतलब पता ही है, एक भाषा तो ज़्यादा भाषाओं का यूज़ करना। सो एज चाइल्ड कम टू स्कूल विद द डाइवर्स लैंग्वेज, सो लर्नर्स आर टोट इन इंग्लिश फॉर क्लास 1। नहीं, बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड तो आ रहा, डाइवर्स तो आ रहा, तो उन्होंने इंग्लिश करवाओगे। लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डेविएशंस आर सीन एज अ गोइंग अवे फ्रॉम स्टैंडर्ड, अवे दूर नहीं जी। लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग, बच्चा अपनी मात भाषा तो अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करता है एंड मूव ऑन टू एड मोर लैंग्वेजेस एज द प्रोग्रेस। डेफिनेटली लाइक तुसी भी पहला पंजाबी सीखी सी, पंजाबी तो बाद तुसी हौली हौली किधर शिफ्ट होए हो, हिंदी सीखी, दैन इंग्लिश, कुछ बच्चे प्रैफर करते हैं फ्रेंच सीखना, स्पैनिश सीखना। पहला तुसी अपनी मदर टंग ते कमांड बनाओगे, दैन तुसी अदर लैंग्वेजेस प्रैफर करोगे। डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन आर नाइदर टॉलरेटेड और नॉट यूज इन द क्लास। एवं की कोई चीज़ नहीं होंगी कि टॉलरेट ही नहीं करी जाएगी जेकर बच्चा स्पैनिश बोल रहे, या फॉर एग्जाम्पल आप अपने एरिया की गल करते हैं, इंडिया की गल करते हैं, बच्चा जेकर तुहाडी क्लास दे विच इंग्लिश बोल रहा बट तुसी एज अ पंजाबी टीचर हो या तुहानूं उन्नी इंग्लिश कमांड नहीं है तो तुसी उत्ते बच्चे नूं रोकोगे नहीं, ठीक है। इत्थे हुण चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच फॉलो खराब नहीं करनी, तुसी बच्चे दे अकॉर्डिंग अपने आप नूं टालोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइप ऑफ असैसमेंट वेयर स्टूडेंट्स डिसाइड फॉर दैमसैल्फ। देखो पता की गल होंदी बेटा, क्वेश्चन दे विच आंसर पिया हुंदा, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ियां बट मैनूं पता चल गया दैमसैल्फ आया है तो किधर ना किधर बच्चे की आपदे आप की गल होएगी। असैसमेंट है एज लर्निंग आ सकता जेकर ऑप्शन दे विच है, मैं ऑप्शंस बिना देखे तुहानूं दस रही हाँ। द टाइप ऑफ असैसमेंट वेयर स्टूडेंट्स डिसाइड फॉर दैमसैल्फ इफ दे थिंक देयर प्रोग्रेस और लैंग्वेज यूज इज़ गुड और नॉट। जेकर लैटर सपोज मैं तुहाडी क्लास च कह रही, तुसीं अपने आप नूं देखो कि तुसीं कितना कुछ स्टैंड कर लिया है ना। जोड़ा तुहाडा मॉक टेस्ट होया सी एक दिन पहला, उहदे तो देखो तुसीं नैक्सट डे जोड़ा मॉक टेस्ट दिता है उहदे विच कितना प्रोग्रेस आया। सो इत्थे बच्चा समੇਟਿਵ असैसमेंट उहदा टीचर करता है एंड एट द एंड ऑफ द सैशन हुंदा है। ग्रुप असैसमेंट नहीं है, पीयर असैसमेंट नहीं है, सैल्फ। मैं तुहानूं कहा सी ना जिथे बच्चा खुद काम कर रहा तो दैमसैल्फ वर्ड आ जाएगा। हियर डी विल बी राइट आंसर। इज इट ओके? चलो क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलैक्ट एंड एक्सेंट। बस इन्होंने दोनों चो सिर्फ एक चीज़ याद कर लेना, एक्सेंट सब तो ईजी है। एक्सेंट मतलब होंगे तुम एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हो। देखो कि ऑप्शन च पे सीधा सीधा आंसर है। एक्सेंट रिलेट टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज, नहीं जी। एक्सेंट रेफर्स टू द कॉलोनिकल वर्ड्स, नहीं। डायलैक्ट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज एंड यूज द, ओहो सॉरी, एक्सेंट रेफर्स द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन, बिल्कुल ठीक है। देन डी ऑप्शन च एक्सेंट रेफर्स टू द टीचिंग वोकैबलरी, नहीं जी। एक चीज़ याद कर लो, दूसरी अपने आप समझ आ जाएगी। एक्सेंट का मतलब होंगे तुसीं देखा होगा जो नवे नवे इंग्लिश बोलते ना सारे ही बोलने हाय हाउ आर यू, मतलब तुसीं अपना एक्सेंट क्यों चेंज कर दो, तुसीं नॉर्मल इंग्लिश बोलो हाय हाउ आर यू, है ना। एक्सेंट नहीं बदलना, एक्सेंट का मतलब होंगे तुसीं अपनी बोलन दा प्रोनाउंसिएशन किवें यूज़ कर रहे हो। लाइक एक्सेंट रेफर्स द टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन, किसी भाषा में किवें बोलोगे। डायलैक्ट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज, जिवें आपां भाषा यूज़ करने उनकी गल करते हैं, ठीक है। सो यही सी बेटा अपनी आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि तुहानूं सारे बच्चों को 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तुहाडा डे प्रोडक्टिव गया होएगा। मेरे कहने का मतलब है कि सैशन मिस करन दे नाल भी की हुंदा, बच्चे दा लिंक टुट जांदा है। इस करके 10 क्वेश्चन आपां जरूर रखे ने अपनी आज के सैशन दे विच, बाकी आपां मंडे कंटिन्यू करांगे, ठीक है बेटा। बाकी ਜਿਹੜੇ अपनी मॉर्निंग 7:45 ਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕੰਬੋ ਸੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। 10 ਫੈਬ ਤੋਂ अपने मॉक टेस्ट रिवीजन बैच सारा कुछ मैं तुहानूं दस चुकी ਹਾਂ, स्टार्ट हो चुके हैं। जेकर तुसीं स्टिल बैच या फिर अपने मॉक टेस्ट ਨੂੰ बाय नहीं करिया तो बेटा बाय कर लेना, बहुत बेनीफिशियल रहने वाले ने, ठीक है। सो ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵਾइंड अप करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सैशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू क्लास।